दर्शन करिए और साथ संगत जी हाजिरी भरांगे। सारी साथ संगत हाजिरी भरे। नाम बिना सुख नाही, हर के नाम बिना। 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 नाम जपो हर का नाम जपो। नाम जपो हर का नाम जपो। नाम जपो हरि का नाम जपो। नाम जपो हरि का नाम जपो। नाम बिना सुख नाही, हर के नाम बिना। नाम बिना सुख नाही, हर के नाम बिना। नाम बिना सुख नाही, हरि के नाम बिना। नाम बिना सुख नाही, हरि के नाम बिना। हर का नाम जपे वट पागी, हर का नाम जपे वट पागी। हर का नाम जपे वट पागी, हर का नाम जपे वट पागी। राम नाम लिव लाहे वट पागी, राम नाम लिव लाहे वट पागी। राम नाम लिव लाए वट पागी, राम नाम लिव लाए वट पागी। नाम बिना सुख नाही, हर के नाम बिना। 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 नाम जपो हर का नाम जपो। नाम जपो हर का नाम जपो। नाम जपो हरि का नाम जपो। नाम जपो हरि का नाम जपो। संगत जी गुरबाणी कहती है, नाम जपो हर का नाम जपो। नाम बिना सुख नाही, हर के नाम बिना। उस परमात्मा साध संगत जी उसको हरि भी किया जाता है। आप कई बार गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ श्रवण करते हैं कि साध संगत जी हरि ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਰਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हर के नाम बिना सुख नाही, हर के नाम बिना। हर का नाम जपे वड भागी, राम नाम लिव लाए वड भागी। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਸੰਗ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਈਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕਰੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਰੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਫਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਾਈ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੱਗਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਫਲ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਫਲ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੀ ਛਿਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ 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 ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। 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 ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ, 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 ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ, ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੜਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਰੂਹ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਪਿਆਰਾ, ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੈਜ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
जिवें गुरबाणी कहती है ना साध संगत जी, वो जुग जुग रखता आया, वो जुगा जुगा तो रखता आ रहा है, अपनी पैड़ी ते रखता रहेगा। जो कहते हैं ना साध संगत जी अपने सिर ते आण पैंदी भी कोई गल ते कहते हैं कि हुण ते अकाल पुरख रब परमात्मा वाहिगुरू ही जानदा, लाज रखे ते चाहे वो ना रखे। ते साध संगत जी वो परमात्मा की जेकर आपां लाज रखांगे, गुरबाणी की आपां कदर करांगे, गुरबाणी का साध संगत जी उच्चा अहुदा करांगे ना, ते साध संगत जी अपनी भी कह जो परमात्मा हर जगह दे विच जरूर रखेगा। ते साध संगत जी जेड़ा एक संसार दे विच जीव आया है, वो हर एक चीज दे विच साध संगत जी इन्ना रुझ चुकिया है कि उन्होंने किसी कम्मा कारां को वेल नहीं। लेकिन साध संगत जी समय के अनुसार ये समा भी ते वेखना किहड़ा चल रहा है, इहदे विच साध संगत जी जिवें अज कहंदे हैं ना कि साध संगत जी जीवन के नाल नाल भोजन करने की लोड़ हुंदी है, प्यास बुझाउण दे नाल नाल पानी की लोड़ हुंदी, जल की लोड़ हुंदी है। इसी तरह जे शरीर के विच पीड़ा हो जाण ते आपां डॉक्टर कोलों जां वैद कोलों कोई दवाई लैके आउंदे आ, तां जाके फिर आपां नूं आराम लगदा है कि कुछ सही हो रहा है। इहदे नाल नाल साध संगत जी करन तों पहिलां जिहड़ा डॉक्टर का काम है डॉक्टर करेगा, जिहड़ा आपां खुद कर सकते हैं वो साध संगत जी परमात्मा ते छड्ड दईए, परमात्मा नूं जपीए भावना करके वो परमात्मा भी करेगा। वो ते साध संगत जी कर रहा है, लेकिन आपां नूं उन्हें समझना पेगा, अपना जीवन के विच महसूस करना होगा कि परमात्मा आपां नूं कित्थे करके किहड़ी मदद कर रहा है। किसी ना किसी रूप में हर एक जीव की मदद करता है, हर एक जीव की सहायता करता है, चाहे किसी के इंसानी रूप में आके, चाहे किसी होर कोई साध संगत जी फरिश्ता बन के आउंदा कोई ना कोई, डॉक्टर के रूप में आ गया तां अपना दुख कट्टिया गया। कृपा तो परमात्मा की बरकत ही है ना साध संगत जी। फिर आप परमात्मा नूं भुल के बेमुख हो के फिर आप कहते हैं कि सानू तो डॉक्टर ने ठीक किया। डॉक्टर की की मजाल है, जेकर वो परमात्मा की कृपा होएगी तो ताई कि डॉक्टर आपको मिलिया, ताई कि डॉक्टर तक जाने का आपको रस्ता मिलिया, ताई कि साध संगत जी अपना दुख मर्ज जिहड़ा खत्म होया ना। नहीं तो एवं आपको किने दस्या है, जेकर आपको किसी ने दस दिता कि तुहाडा आ मर्ज है, तुसीं उस इस जगह पे चले जाओ, तुहानूं डॉक्टर मिलेगा, ठीक हो जाओगे। ते साध संगत जी जिहड़ा दस्सण वाला है ना, वो एक रब दा रूप फरिश्ता बन के आउंदा है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਤ ਗਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ जुड़िया होया है, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹ ਬਰਤਨ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ, फिर आप गुरबाणी में छड़ दिता, विसार लिया, फिर साध संगत जी को फिर दोबारा दुख आया, फिर आप वर्त लिया। साध संगत जी आप गुरबाणी में एक बर्तन के नाल एक वस्तु के नाल जोड़ देता है। लेकिन गुरबाणी वो चीज है कि जिवें साध संगत जी एक जल ते अग्नि है ना, इहदे बिना ना ते इंसान कुछ पका सकता है ना ही कुछ भिगो के बना सकता है। जे पानी अग्नि नहीं है ना तो जीवन के विच इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसे तरह सब तो जरूरी पदार्थ इस दुनिया का जिहड़ा एक जल में जीव किया गया है, लेकिन इहदे नालों सारी चीज़ों के नालों सब तो वड्डी चीज एक लोड़वंद गुरबाणी है। कहते हैं ना साध संगत जी जदों जिहड़ा जीव जिहड़ा भगत जिहड़ा सेवक उस परमात्मा को सिमरदा है, उन्होंने ना तो पानी की लोड़ पैंदी, ना अग्नि की पैंदी, ना कोई खाण पकाण की लोड़ भी पैंदी है। वो एक नाम के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। ये दूजे जिहड़े पदार्थ ने इन्हां दी पावर अपनी जगह पूरी है, लेकिन गुरबाणी के बराबर किसी इस दुनिया में पैदा नहीं हुई कोई चीज जिहड़ी उहदे गुरबाणी में जिन्नी पावर होवे। गुरबाणी की बहुत वड्डी पावर है, इहनूं जानना पैंदा, इहनूं महसूस करना पैंदा ते किसी ना किसी रूप में सहाई बन के परमात्मा
जरूर आता है। साथ संगत जी आओ आप एक गुरबाणी का शब्द पढ़ांगे। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। अंतर्जामी सो प्रभ पूरा। अंतर्जामी सो प्रभ पूरा। अंतर्जामी सो प्रभु पूरा। अंतर्जामी सो प्रभु पूरा। दान देओ साधु की तोड़ा। दान देओ साधु की तोड़ा। दान देओ साधु की तूड़ा। दान देओ साधु की तूड़ा। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। जलधर मैयल रहा भरपूरे। जलधर मैयल रहा भरपूरे। जल थल मैयल रहा भरपूरे। जल थल मैयल रहा भरपूरे। निकट वसे प्रभ नाही दूरे। निकट वसे प्रभ नाही दूरे। निकट वसे प्रभु नाही दूरे। निकट वसे प्रभु नाही दूरे। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला
कृपाहा प्रभ तेरी दयाला तेरी कोट पूर्ण गोपाला। साध संगत जी कर कृपा प्रभ जिहदे ते कृपा करदा है वही साध संगत जी उस परमात्मा नूं साध संगत जी जाणदा है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂੜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਤ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਟ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਿ ਜਬ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੋ ਵਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂੜਾ। ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਸ ਸਾਧੂ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਹੀ ਦੂਰੇ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਹੀ ਦੂਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਕਟ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, लेकिन अपन अजनक देख नहीं सके। निकट से प्रभ नाही दूरे। वो परमात्मा को बहुत ही दूर नहीं है, परमात्मा बहुत नेड़े है। आप छोटी जी पुकार करिए ना मनो होके भावना करके फिर भी साध संगत जी परमात्मा अपने करण तो पहले ही जानता कि अज आ सेवक इन्नी कुछ श्रद्धा नाल अरदास कर रहे हैं। कहते हैं ना साध संगत जिस दुनिया के मोटर गड्डियां बड़ियां ने कहते ने जिन्ना तेल पाई जो उन्ना चलाई जाओ, वो मना नहीं करेगी। जो मशीनरी होगी ठीक ठाक के तेल पाई जो चलाई जो चलती जाएगी। लेकिन इस तरह ही अपने इस दुनिया की गुरबाणी की गल है, जिन्ना का आप श्रद्धा मन के पाई जावांगे उन्ना के परमात्मा आपको फल दी जाएगा। जेकर अपने मन के श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, चाहे आप लख तीर्थ स्नान करिए, लख जगह ते डेरे, लख संगत जी गुरबाणी की व्याख्या सुन लीए, लख कीर्तन सुन लीए, वो भाव पहुंचता है। लेकिन साध संगत जी मन के विचार होवे, मन के भावना होवे, ताही उसका भाव पहुंचता है, ताही
एक साध संगत जी दुआ एक मन दे विच बस जाती कि यह गुरबाणी आ उपदेश कर रही है। साध संगत जी इस तरह एक मन रूपी शरीर रूपी साध संगत जी भावना साध संगत शरीर में चलाने के लिए एक तेल भावना का पाना पैना है, ताही आप चल सकांगे, ताही आपको ज्ञान हो सकेगा कि गुरबाणी के उपदेश भी होंगे ने। गुरबाणी ये कदे नहीं समझाती कि हर एक इंसान के नाल ईर्खा रखो। गुरबाणी कहती जिहदे नाल ईर्खा भी है ना, किसी नाल शत्रुता भी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी प्यार प्रेम के नाल पेश आओ, ਉਹਨੂੰ भी अपना जिहा बना लो। जे आप गुरबाणी नाल जुड़े आ, जे आपां नहीं ਉਹਦੇ वर्गे बने आ, जे ਉਹ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨ वाला ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ वर्गे बन जाइए। ये साध संगत इस दुनिया में ਆਪਾਂ देखो बुराई करते हैं। साध संगत जी कहते हैं ना, कोई पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ कोई एक इस्त्री कोई सोहना सुंदर वस्त्र ले ले, ਉਹ जाके दूजी इस्त्री देख के कहती है मैं भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ लेना है, वो फिर उसकी देखा बकाई चल जाती है कि उन्हें लिया तो मैं भी लेना है। जेकर कोई वीर कह दे कि अज मैं फोन आ लिया है तो ये नाल दे इसको बड़ा फोन लेना है, देखो बकाई चल रही है, वो पैसा नहीं देखा जाता उत्थे। वो साथ साथ एक मन की भावना मन का शौक होता है किसी चीज अपने हाथ में ले ली। दुनियावी कामां दे विच आपां एक दूजे की कॉपी कर लेंगे हैं, लेकिन साध संगत जी गुरबाणी दे विच कदे एक दूजे की आपां कॉपी करके नहीं देखी। जिवें करके साध संगत जी कोई गुरबाणी नाल जुड़िया है, जेकर कोई सेवक गुरु का बनया है, नाम जप रहा है, आपां नूं वेख के भी साध संगत जी आपां ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ बन सकते हैं। ते ਉਹਦੀ भावना जुड़ती है ਜਾਂ नहीं जुड़ती, लेकिन अपना नियम नहीं करता है ना, ਜਿਹੜਾ नियम का पक्का होता है, नियम के नाल रहंदा है, ਉਹਨੂੰ साध संगत जी परमात्मा भी फल जरूर दिंदा है। ਜਿਹੜਾ उस परमात्मा के बनाए समय की कदर करता है, वक्त की कदर करता है, वक्त ਉਹਨੂੰ साथ दिंदा है। कहते हैं ना साध संगत जी, अज कहते हैं कि दुनिया से जेकर किसी की कोई मौत आई होगी तो कहते हैं उन्होंने समा घेर के उत्थे ले जाता है। जेकर समा घेर के ले जा सकता है, जेकर आप समय की कदर करांगे तो समा आपां उत्थों बचा भी सकता है। समय दे विच कौन समाया होया है? वो परमात्मा आप समाया होया है हर एक चीज दे विच। कहते हैं ना काल है, काल दे विच कौन है? होनी दे विच कौन बसदा है? होनी आपे पैदा थोड़ी हो गई, उन्होंने पैदा करने वाला सी, काल को कोई पैदा करने वाला सी। इसे करके काल दे विच काल के ना हो गया है। काल दे विच छिपिया कौन है? वो परमात्मा काल पुरख ही छिपिया है। इंसान दे विच कौन छिपिया है? वो परमात्मा छिपिया है। शैतान दे विच कौन छिपिया जिन्हों आपां शैतान कहने हैं, गलत कहने हैं जिन्हों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तो परमात्मा बस रहा नहीं बस रहा। लेकिन साध संगत जी आपां समझिए किदां गुरबाणी की लैन में जेकर आपां गुरबाणी नूं जपांगे ते आपां सिमर के ही गुरबाणी नूं जप के ही कोई फल पा सकते हैं। क्योंकि साध संगत जी फल मिलते ने, लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ आपां नूं एहसास करना पैंदा है। कुछ कहते हैं ना साध संगत जी पाण के लिए खोना पैंदा है। इसी तरह साध संगत जी जेकर इस दुनिया के विच रह के उस परमात्मा का सुख मानना है, परमात्मा की कृपा अपने ते बनाउणी है, ते आपां नूं ओह काम छड्ड के गुरबाणी के विच समां बिताउणा पैना है। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਤਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, परमात्मा की नजर में जो कुछ भी नहीं है। गुरबाणी कहती है कि तू कर्म कर, लेकिन कर्म करने का एक हिसाब होता है, कर्म करने की एक लिमिट होती है कि शासक जी किन्ने के समय से जिन्ना को वहां कर्म करना है। शासक जी अपना कर्म भी करिए, नाल दे नाल उस गुरबाणी का सिमरन करके अपना जीवन का भी कुछ सोच लीए, विचार लीए। कहते हैं ना शासक जिस दुनिया के उत्ते कई रूहां आईयां ते कई जा चुकियां ने, वो अपने नेता तो दूर हुई ने, कई तो भटक रही ने, अजे भी हुण भी भटक रही ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कदे इस समय की कदर नहीं की, कदे गुरबाणी के वचनों की कदर नहीं की, कदे ना गुरबाणी को समझिया नहीं। इस करके शासन जी हो अज इस दुनिया में भटक रहे हैं। जे इसी तरह आप भी भटकना है, भटकने को होता है कि जेड़ा अज शासन जी कदे किथे ते कदे किथे। एक गुरुमत विचार दे विच ये भी चीज आउंदी कि जेड़ा आपां थाए थाए भटकना गुरबाणी नूं मना नहीं है। गुरबाणी नूं कोई भी
श्रवण कर सकता किथे भी मिले, लेकिन एक भावना कभी किथे ला लेनी कभी किथे ला लेनी, एक बहुत सासंग जी सासंग जी बहुत एक भटकन वाली चीज है। अज आप सासंग जी पौध वाल वेख लीए, किसी भी चीज की पौध ला दईए, जो कोई आप सासंग जी पेड़ ही लाना होए, जिथे वो पेड़ का बीज पाइए उत्थे जमदा है, बड़ा छेती वधदा है। सासंग जी की परवरिश होती रहे तो बड़ी छेती वधदा है। सासंग जी एक जगह तो चलो एक बार पट के दूसरी जगह ला दिता फिर भी हो जाएगा, लेकिन जेकर सासंग जी दूसरी तीजी चौथी बार आप पट पट के लाते रहे साइडा से, वो पेड़ कभी पूरा नहीं बनेगा। एक दो की उम्र कट जाएगी, दूसरी गल कभी सासंग जी फल लेके नहीं आएगा, क्योंकि एक ना एक दिन उसकी जड़ जी कट्टी जानी तुम्हें सुक जाना है। इस सासंग जी समय के अपने इन्होंने जीवन की गल है। जेकर आप एक जगह गुरबाणी प्रीत पाईए ना, उत्थे अपने लिव जोड़ के रखिए, उत्थे अपना समा गुरबाणी के बिताइए, परमात्मा नाल प्रीत जोड़ के रखिए। जेकर एक बार अपना मन भटक भी गया तो दूसरी बार वो काबू करके अपने बस कर लीए। सासंग जी कहते ने ना, एक बार जो कोई गुस्सा होता है तो गुस्सा क्रोध जरा कभी कोई नहीं वेखता, लेकिन क्रोध ये जरूर वेखता है कि चीज वेखता कि मेरा शरीर आपका भी ते ना। क्रोध जो आया होवे दूजे से अत्याचार करने तो पहला, दूजे से गुस्सा सासंग जी क्रोध करने तो पहला अपने शरीर में वेखिए, आप अपने शरीर से क्रोध क्यों नहीं करते। जो कोई कहते हैं ना अपने शरीर से कोई क्रोध करता है तो अपने शरीर को भी त्यागता है कि अपनी आत्मा को भी बेकार हो जाता है, क्योंकि घर टूटिया तो आत्मा के बेकार हो गई ना। आत्मा का घर अपना शरीर है। जो करके दे अंदर समाज में तो फिर जो सासंग जी अपने आप में कोई क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो सासंग जी इस दुनिया तो कोई ना कोई उल्ट कदम चल के ये देर में त्याग होता है, जिन्हों आप आत्मा देते देने। सासंग जी वो शरीर हत्या नहीं होती, आत्मा हत्या होती है, क्योंकि आत्मा जी है ना अध विचकार लटक जाती है, ना अगे थी ना पिछे थी, और फिर आत्मा से दुनिया को पटपन योग रह जाती है। इस तरह ही अपनी सासंग जी गल आप भी सासंग जी आत्म हत्या गुरबाणी के रूप में कर रहे हैं, गुरबाणी की लैन में कर रहे हैं कि जेड़ा आप गुरबाणी को जपते जपते एकदम गुस्सा आया तो गुरबाणी को दूर हो गया, तो सासंग जी अपना नाद शरीर पार हो सकता है तो ना ही अपनी आत्मा पार लंघ सकती। शरीर पार कितना होता है, शरीर इस तरह पार होता है कि सासंग जी दुखों के जो गुजरता है ना, जेकर गुरबाणी में याद रखांगे, जे शरीर में लिजा के गुरबाणी के विच शामिल होवांगे बैठांगे तो वह फल इस शरीर को भी मिलता है। सासंग जी जिवें कहते हैं ना, सासंग जी एक पेड़ पालते हैं, पेड़ की जिहड़ी टहनी होंदी है, पत्ता होता है जां उहदी शिकल होंदी है पेड़ की, पानी लाते हैं तो हर एक टहनी टहनी तक उसका असर पहुंच जाता है। इसी तरह सासंग जी जेकर अपनी आत्मा सुनती है, आत्मा को सुनने तो पहला अपना शरीर सुनता है, शरीर सुनता है उस तो बाद अपनी आत्मा तक पहुंचता है। कई बार जो आप शरीर शरीर सुन लेंगे आत्मा तक पहुंचनी नहीं देते, वो सासंग जी गैर हाजिर होते हैं, उदों अपनी हाजिरी पूरी नहीं होती। और सासंग जी का धारणा पढ़ांगे, किथे जाके बह के बात ते अमालिया, किथे जाके बह गयो बात ते अमालिया, किथे जाके बह गयो बात ते अमालिया, किथे जाके बह गयो बात ते अमालिया। तेरे बिन बाग सारा बाग खाली खालिया, किथे जाके बह गयो बाग ते अमालिया, किथे जाके बह गयो बाग ते अमालिया, किथे जाके बह गयो बाग ते अमालिया, किथे जाके बह गयो बाग ते अमालिया। हुण बाग सारा खाली खालिया, बाग सारा खाली खालिया, हुण
जाके बह गयो बाग दिया मालिया किथे जाके बह गयो बाग दिया मालिया किथे जाके बह गयो बाग दिया मालिया जिस बाग दे माली छड़ तुर जान जी 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 बाग दे परते जेड़े सुख कुल जान जी बाग दे परते जेड़े सुख कुल जान जी बाग दे परिंदे जेड़े सुख कुल जान जी बाग दे परिंदे जेड़े सुख कुल जान जी रुख रोए पत्ते रोए रुख रोए पत्ते रोए रोई डाली डालिया रोई डाली डालिया रुख रोए पत्ते रोए रुख रोए पत्ते रोए रोई डाली डालिया रोई डाली डालिया मलिया विभाग सुना छड़ के जाईदा मलिया विभाग सुना छड़ के जाईदा मालिया विभाग सुना छड़ के नहीं जाईदा मालिया विभाग सुना छड़ के नहीं जाईदा संगत जी एक दुनियावी गल भी है एक गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਪੂਰਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਇਸ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਘਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ कि आत्मा किवें नाम जपेगी किवें अपने नियम पूरे करेगी संगत जी इतिहास दे विच लैके नु कुछ विचार करना गुरबाणी जो कहती क्योंकि वो दुनियावी गल्लां दे विच भी आउंदा है लेकिन अंदर जो गल जो गुरबाणी दी है ना यही है ते जदों संगत जी फिर आत्मा अकली रह जाती है उदों फिर संगत जी वो थाए थाए भटकदी है इस करके गुरबाणी कहती कि जी आत्मा ते अपने ते गुस्सा करना अपने ते विरोध करना जिवें हानिकारक होता इसी तरह दूजे उत्ते भी विरोध करना ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ गलत ਹੁੰਦਾ है इसे तरह संगत जी वैर विरोध छੱਡ के जेकर ਆਪਾਂ गुरुमत विचार ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ और संगत जी एक धारणा पढ़ के समाप्ति करांगे धारणा जो कहती है संगत जी विचार करे मेरी लगी गुनाह नाल प्रीत दुनिया की जान 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 दुनिया की जान मेरी लगी गुरान प्रीत दुनिया की जान मेरी लगी गुरान प्रीत दुनिया की जान
मेरी लगी गुरा नाल प्रीत दुनिया की जाने। खैर नाम दी मंगी मैं ता खैर प्रेम भी मंगी मैं ता खैर नाम दी मंगी मैं ता खैर प्रेम दी मंगी मैं ता गावा खुशी विच गीत दुनिया की जाने गावा खुशी विच गीत दुनिया की जाने मैं गावा खुशी विच गीत दुनिया की जाने। मैं गावा खुशी विच गीत दुनिया की जाने। मेरी लगी गुरा नाल प्रीत दुनिया की जाने मेरी लगी गुरा नाल प्रीत दुनिया की जाने मेरी लगी गुरा नाल प्रीत दुनिया की जाने। मेरी लगी गुरा नाल प्रीत दुनिया की जाने। दुनिया की जाने दुनिया की जाने दुनिया की जाने दुनिया की जाने। मेरी लगी गुरा नाल प्रीत दुनिया की जाने मेरी लगी गुरा नाल प्रीत दुनिया की जाने मेरी लगी गुरा नाल प्रीत दुनिया की जाने। मेरी लगी गुरा नाल प्रीत दुनिया की जाने। खैर प्रेम दी मंगी मैं ता 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 गावा खुशी विच गीत दुनिया की जाने गावा खुशी विच गीत दुनिया की जाने गावा खुशी विच गीत दुनिया की जाने। गावा खुशी विच गीत दुनिया की जाने। सतसंग जी गुरबाणी कहती है मेरी लगी गुरा नाल प्रीत ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਸਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਸਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ਤਰੂਤਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੋ प्रेम हो जाए तो सासंगत जी का प्रेम की अलग ही चीज निकली कहते हैं सासंगत जी मेरी लगी गुरा नाल प्रीत दुनिया की जड़े दुनिया कहती है ये पागल हो गया इन्ना कुछ होया इन्हें फिर भी ये घर में अपना डेरा ला के बैठा है फिर इतने हो गए क्यों हो गए क्योंकि दूजा तीजा से अपने उन्होंने अलग अलग देखना चाहता है वो नहीं देखना चाहता कि इकट्ठे हो जाए वो तो कहता इकट्ठे क्यों हुए लेकिन वो कहते हैं तुम बेशरम हो गए तुम ये हो गए वो कहते हैं ना गला दुनियावी कुर्सियां क्यों कर रहे हो लेकिन सासंग जो कहते हैं खैर नाम दी मंगी मैं ता खैर प्रेम दी मंगी मैं तो परमात्मा तो ही प्रेम दी खैर मंगी सी कि मेरा पूरे अपने शत्रुता दुश्मनी जी है ना मिट के एक प्रेम की लैंड में तुरीए कि तू प्यार प्रेम के नाल रहिए ये संसार ही इसलिए मिलया है ये जीवन इसलिए मिलया है कि अपना प्रेम भाव के नाल रह के अपना जीवन बतीत करिए जे खैर नाम की मंगी है ना ते नाम की खैर मंगण तो पहला उस परमात्मा को प्रेम की खैर मंगी कि मन के विच दया प्रेम प्यार आ जाए फिर जाके अपना नामदान के नाल फिर गुरु के नाल चलिए ये सत्संग जी विचार कर लियो गुरबाणी जो कहते हैं भुल्लां हर एक इंसान को दियां ने विचार हर एक इंसान करता है लेकिन सत्संग जी विचार वो वड्डी होती है गुरुमत विचार के विच जिहड़ा सारा कुछ भुला के एक प्रेम का दीवा बाले आओ सत्संग जी समाप्ति करांगे हाजरी भर के उस परमात्मा को याद करिए मेरा मुझ में किश नहीं मेरा मुझ में किश नहीं मेरा मुझ में किश नहीं मेरा मुझ में किछ नहीं जो किश है सो तेरा
जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। तन भी तेरा मन भी तेरा, तन मन तेरा सब कुछ तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, तन मन तेरा, सब कुछ तेरा। तू स्वामी ठाकुर प्रभ मेरा, तू स्वामी ठाकुर प्रभ मेरा, तू स्वामी ठाकुर प्रभ मेरा, तू स्वामी ठाकुर प्रभ मेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप के, तेरा तुझको सौंप के, तेरा तुझको सौंप के, तेरा तुझको सौंप के। क्या लगे है मेरा, क्या लगे है मेरा, क्या लगे है मेरा, क्या लगे है मेरा। सारी साध संगत जी हरि गुरु साहब जी साध संगत जी इथे ही समाप्ति करते हुए उस काल